हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ध्यान दें। कैसा है कि हमारा ये सेकंड यूनिट रहेगा। ओके, इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्म सिस्टम। सो इसमें मैं अभी आपको यहाँ पर इंटरनल आर्किटेक्चरल डिटेल यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, along with the some instruction set. Okay, as well as architecture of the microcontroller. Okay, now see, today's topic is difference between the RISC and CISC processor. Okay, in last lecture we have learned about the arms. Okay, and how you can select the arms for different peripheral different applications, right? As well as I have given you idea about the different features of these arms. Okay, now we see how these arms in RISC and CISC are compared. Okay, see, most of the arms family arms variants are coming under the RISC, and more other variants are coming under the CISC processor. Okay, so here I am giving you the differences between these. Okay, so here in front of you I have given the two columns. First one is CISC and second one is RISC. So first of all, you should know what is RISC. RISC is a reduced instruction sets computer, and CISC is complex instruction sets computer. Now see, ARM7 is totally based over the RISC processor, okay, and RISC architecture, and ARM9 is coming under the CISC family. Okay, so you should know here what will be the comparison. See, in terms of RISC, if you find a fixed size instruction that will be 32-bit wide, and it has near about very few formats are available for that. But whenever you go for 6, then here you will find variable size instructions will be there, and there are many formats are available. Okay. Similarly, under the RISC, you can find a single clock is ready. Clock is required for execution of instruction. So that's why single clock reduce instructions will be sent. Okay. Then in terms of CISC, you will find the multiple clock will be required for execution of the instruction. So here you will find multi clock complex instructions. Okay. Similarly, under the RISC, you will find the register to register load and store operation will be carried out. Okay, but in terms of CISC, you will see memory to memory load and store instructions are available. Under the RISC, you will see large code size, low cycle per second. Similarly, under the CISC, you will see small code size and high cycles per seconds will be there. Then RISC has emphasis on the software, and CISC has emphasis on the hardware. Then RISC is a reduced hardware cost, and under the CISC you will find increased hardware cost will be there. Okay, so for your comparisons point of view, here again I have some again few comparison points. Okay, so for that I am telling you here again one by one. Okay, if you see, RISC is a redesign ISA that emerged in uh, the early 1980s. But if you see, CISC, it is the original microprocessor ISA. Okay, so in RISC, you will see single cycle instruction will be there that we seen. Similarly, in CISC, instructions can take several clock cycle. Okay, similarly under the RISC you will see software centric design will be there. Okay, and it has high level compiler. It will take on the most of the burden of coding many software steps from the programmer. Okay, so generally the RISC designer are taking lot of effort while designing the software, but under the CISC the hardware centric design will be there. So that's why the ISA does as much as possible using the hardware circuitry. Okay, so this will be the main comparison point between these ARM RISC and CISC. Okay, similarly you can see.
Heavy use of RAM bottleneck, heavy use of RAM will be seen under the risk. Okay, and CISC will are more efficient use of RAM than the CISC. Okay. Similarly, under the risk, you will see simple and standardized instructions are available. Under the CISC, you will find the complex and variable length instructions are present. Okay. Under the risk, you will see only one layer of instruction will be there, but CISC will see may support microcode, microprogramming where the instructions are treated like small programs. Okay. Similarly, under the risk, you will see small number of fixed length instructions are available. Similarly, under the CISC, you will see a large number of instructions are available and they are of variable length. Okay. So limited addressing mode will be available under the risk, and complex addressing mode will be there in CISC. Okay. So this will be the major comparisons point between the risk and CISC. Okay. Now, these are the different applications that shown in this slide. Okay, here you can see these are the ARM powered products. They are available in the market. Okay, in that you will see mobiles, your personal digital assistants, tabs, printers, scanners. Okay, there are many digital toys. Okay, everything, digital cameras. Okay, DVD players. Okay, so these different products are comes under the ARM powered products. Okay, so these are few applications of these ARMs. Now, the next point that I like to tell you here, pipeline organizations. Okay, actually, if you see ARM structure, ARM architecture, then there are pipeline or pipeline structure will be there. Okay, so pipeline concept is most commonly adopted under this ARMS family. Similarly, you can see the architecture is also constructed in pipeline fashions. Okay, so whatever the architecture that I will show you in later slides, okay, that will be organized in terms of pipelining fashions. Okay, now first point regarding this pipeline organization is increase speed. You can find whenever you are going to execute the instructions under the processor, you will see the first benefit of this pipeline organization is it increases the speed of execution. So most instruction executed in single cycle, okay, they are uh, they are executed with the help of this pipelining concept. So you will see increased speed advantage. Then there is a version, okay, that you will see in ARM like a three stage, five stage, and six stage. So three stage pipelining is adopted under the ARM 7 TDMI and earlier. Okay, and then ARMS 9 TDMI will adopt near about a five stage pipelining concept. Then onwards, in like ARM 10, 11, six-stage pipelining concept is adopted. Okay, so here we see how the pipeline model will be there. So in this slide, you can see there are total three different sections are available under the three-stage pipelining. Okay, so here I am telling you about the how these sections will work.
Okay, so whenever you will see pipelining, or if there is a questions how many stages are there in a pipelining, so that's why your answer should be there. There are total three stages in pipelining. Okay, which are the three stages? Fetch, decode and execute. Okay, जैसे जैसे यहाँ पर 3 to 5 स्टेजेस में जाएंगे तो मैं यहाँ पर पाइपलाइनिंग के जो स्टेजेस है वो बढ़ाते जाऊंगा. बट एटलीस्ट एट दिस मोमेंट यू शुड नो how many stages are there in the pipelining. You should answer fetch, decode and execute. Okay, this is the three stages in the pipelining. Actually this pipelining is totally based over the architecture of the microprocessor. Okay, so that's why जैसे हमने माइक्रोप्रोसेसर में कोई इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट होती है, तो जैसा फेच ऑपरेशन होता है, डिकोड ऑपरेशन होता है और एग्जीक्यूट ऑपरेशन होता है, तो उसी फैशन में यहाँ पर पाइपलाइनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की रहती है. ओके, तो पाइपलाइनिंग यहाँ पर 3 स्टेजेस में ही क्यों आई, तो ये आंसर यहाँ पर अभी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइनिंग की कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रोसेसर या कंट्रोलर में क्यों लाया गया, तो ये भी हम यहाँ पर लर्न करेंगे. इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं, ये सारी हम यहाँ पर डिटेल में भी चर्चा करने जा रहे हैं. Okay, so see, this slide is totally dedicated for three-stage pipelining. So see one by one, I am telling you. Okay, see here. First stage is fetch. Okay, second stage is decode, and third stage is execute. Okay, now what is the purpose of fetch? Okay, generally fetch operation हमने already learn किया है. Okay, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर से कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो तो आपको ये पता है कि भाई फेच यानी हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को कॉपी करते हैं मेमोरी से. ओके, जनरली हम हमारा प्रोग्राम अक्सर कहाँ स्टोर करते हैं? वेन एवर वी राइट आवर प्रोग्राम इनटू द माइक्रो कंट्रोलर, दैट प्रोग्राम विल बी रिटर्न इनटू द प्रोग्राम मेमोरी. ओके, सो दैट्स व्हाई जो प्रोग्राम मेमोरी है या जहाँ प्रोग्राम रिसाइड होते हैं वहां पर हम हमारा प्रोग्राम वहां पर स्टोर करते हैं. व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंशियल सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, तो जनरली प्रोग्राम में क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करते हैं और यह इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा. तो वहां पर हमें प्रोग्राम काउंटर इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर में प्रेजेंट रहता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर? द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर? द प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ऐसा कहा जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज हेल्पिंग यू टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. लेकिन जब वो फेच करता है तो फेच यानी यहाँ पर ये फेच ऑपरेशन कहा गया है. ओके, गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई यहाँ हम प्रोग्राम काउंटर को जनरली यहाँ यूटिलाइज करते हैं फेचिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स व्हाई फेच इंस्ट्रक्शन के नीचे लिखा है इट विल हेल्प यू टू सेलेक्ट और इंक्रीमेंट अ पीसी. ओके, पीसी बोले तो प्रोग्राम काउंटर. इट विल हेल्प यू टू सेलेक्ट अ और इंक्रीमेंट अ पीसी. यानी इंक्रीमेंट क्यों करना पड़ता है? इंक्रीमेंट इसलिए करना पड़ता है जब यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है, तो फेच करने के बाद इंटरनली जब कंट्रोलर का जो सीपीयू रहता है, इंटरनली जो कंट्रोलर में या माइक्रो प्रोसेसर में जो डिकोडर है, वो डिकोडर डायग्नोस करता है कि कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है. अकॉर्डिंगली दैट बाइट्स यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीज किया जाता है. सो दैट्स व्हाई वहां पर इंक्रीमेंट वर्ड यूज किया गया है. सिलेक्ट वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं प्रोग्राम काउंटर को. क्यों? क्योंकि whenever we are going to execute any program, whenever we write a command to execute a whenever we write a command to execute a program, then the execute command is directed toward the selection of program counter. So that's why it will go for enabling the program counter, and it passes the address of the program where the program is lying. जो जहाँ पर प्रोग्राम मेमोरी में जहाँ लाई कर रहा है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में पास किया जाता है. इस वजह से यहाँ पर सिलेक्ट पीसी कहा गया है. ओके, देन आता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, रीड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. रीड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी इट विल हेल्प यू
टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी फेच बोले तो वो मेमोरी से, मेमोरी लोकेशन से, मेमोरी जो सेक्शन है, मेमोरी सेक्शन में लोकेशन रहते हैं, तो लोकेशन में वहाँ जो एड्रेस है वो एड्रेस से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कॉपी करता है, रीड करता है। इस वजह से वहां पर रीड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहा गया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन पर्पज ऑफ फेच इंस्ट्रक्शन। नाउ इससे कौन कौन से ब्लॉक यहाँ पर रिलेटेड रहते हैं? सी, फेच जो ऑपरेशन होता है तो वहां पर हमें ये 3 सेक्शन वहां रिलेट होते हैं, यानी इसका रिलेशन इन पर्टिकुलर सेक्शन से होता है। पहला होता है एड्रेस सेलेक्टर। क्वेश्चन, सर व्हाट इज एड्रेस सेलेक्टर? एड्रेस सेलेक्टर का काम होता है टू सेलेक्ट अ अप्रोप्रिएट एड्रेस, यानी कैसा कि हमें जिस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर इंस्ट्रक्शन है वह इंस्ट्रक्शन को हमें पर्टिकुलरली वह पॉइंट आउट करना है, तो वो पॉइंट आउट करने के लिए एड्रेस इंपॉर्टेंट रहेगा। एड्रेस के बगैर वो पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से वह एड्रेस होल्ड करने का काम हमें यहाँ पर एड्रेस सेलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई एड्रेस सेलेक्टर विल गाइड विच विल बी द एड्रेस। ओके, देन सेकंड विल बी द एड्रेस इंक्रीमेंटर। एड्रेस इंक्रीमेंटर यानी प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस रहता है। सो दैट्स व्हाई वह एड्रेस को इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का काम रहता है एड्रेस इंक्रीमेंटर का। वह एड्रेस इंक्रीमेंटर 1 बाइट से इंक्रीज हो सकता है, 2 बाइट से इंक्रीज हो सकता है या 3 बाइट से इंक्रीज हो सकता है। क्यों? रीजन इज दैट कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स रहते हैं। जनरली इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट्स 1 बाइट के हो सकते हैं, 2 बाइट के हो सकते हैं या 3 बाइट के हो सकते हैं। इस वजह से एड्रेस इंक्रीमेंटर 1 या 2 या 3 बाइट से इंक्रीज हो सकेगा। इसी अकॉर्डिंग प्रोग्राम काउंटर वहां पर इंक्रीज होगा। गेटिंग? देन थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर इज अ रजिस्टर, इट इज यूज टू होल्ड अ एड्रेस। जनरली यहाँ पर जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रहता है वह एड्रेस एड्रेस रजिस्टर से ही दिया जाता है, या एड्रेस रजिस्टर इज डायरेक्टली टूवर्ड एज गुड एज अ प्रोग्राम काउंटर। ओके, ऐसा कहा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा है कि एड्रेस रजिस्टर इज अ रजिस्टर, इट हैज अ सेपरेट प्लेस। ओके, तो इसका सेपरेट प्लेस वहां पर रहता है, तो यहाँ एड्रेस रजिस्टर होल्ड करता है एड्रेस को, इस वजह से यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यहाँ पर डिकोड। डिकोड होता क्या है? डिकोड यानी दिस इज द सेक्शन इट इज यूज टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। ओके, जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से कॉपी हुआ, ओके, वह इंस्ट्रक्शन जाएगा कहाँ? वह जाएगा डिकोडर यूनिट में। डिकोडर यूनिट क्या करेगा? इट इज यूज टू डायग्नोसिस, यानी हमें यहाँ पर यह जानना है कि हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन किस ऑपरेशन के लिए लिखी है, ये माइक्रो कंट्रोलर को थोड़ी पता रहता है। इस वजह से माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में जैसे ही मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कॉपी होगी, इमीडिएटली वह डिकोडर यूनिट में जाएगा और डिकोडर यूनिट में वह इंस्ट्रक्शन का डायग्नोसिस होगा, डिकोडिंग होगा। डायग्नोसिस या डिकोडिंग यानी हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि यह इंस्ट्रक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, यह ऑपरेशन यूजर ने किस वजह से लिखी है। एग्जाम्पल, यह इंस्ट्रक्शन एडिशन के लिए यूज की जाएगी या मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज की जाएगी या डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाएगा, तो ये अंडरस्टैंड किया जाएगा एड्रेस डिकोडर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर डिकोडर यूनिट इसी रिलेटेड रहेगा। ओके, इसके साथ साथ एक बार यह ऑपरेशन अंडरस्टैंड हो गया तो उसके साथ साथ वह पर्टिकुलरली यह फाइंड करता है कि भाई यहाँ कितने डाटा यहाँ पर इस ऑपरेशन में रिक्वायर्ड है। तो रिमेंबर, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में कितने डाटा यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो डाटा का सोर्स कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ से आ रहा है, यानी 2 डाटा के ऊपर ऑपरेशन कैरी आउट करना है कि सिंगल डाटा के ऊपर ऑपरेशन कैरी आउट करना है, कौन से टाइप के यहाँ पर सिग्नल जनरेट करने हैं, रीड ऑपरेशन जनरेट करना है या राइट ऑपरेशन जनरेट करना है, ये भी यहाँ पर अंडरस्टैंड होगा। सिमिलरली यहाँ पर कौन से रजिस्टर यहाँ इन्वॉल्व होंगे, ये भी यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जाता है। सो दैट्स व्हाई
यहाँ ये डिकोडर यूनिट यूज यूज किया जाता है डिसेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ओके, once you understand which type of operation is to be performed, which type of register are involved, which will be the source register, which will be the destination register, which will be the signal which are involved in that operation. ये जैसे ही यहाँ पर डायग्नोसिस हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन इमीडिएटली नेक्स्ट सेक्शन को दी जाती है. वह नेक्स्ट सेक्शन रहता है एग्जीक्यूशन यूनिट. ओके, तो रिमेंबर डिकोडर जो है वह डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, उसमें जनरेट करेगा वो कंट्रोल सिग्नल, उसके साथ साथ जनरेट करेगा इमीडिएट ओके एड्रेस, ओके रीड करेगा डाटा फ्रॉम द रजिस्टर फाइल. ओके, ये सारे ऑपरेशन वहाँ पर कैरी आउट होते हैं. अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से ब्लॉक यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. तो जनरली डिकोड ऑपरेशन जब होगा तो पहला वहाँ पर कंट्रोल लॉजिक वहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा. कंट्रोल लॉजिक यानी यह एज गुड एज डिकोडर सर्किटरी ही रहेगा. ओके, ये डिकोडर सर्किटरी डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है. कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी यहाँ पर उसे यहाँ इन्वॉल्व होता है. सेकंड आता है यहाँ पर रजिस्टर फाइल, यानी कौन कौन से रजिस्टर है. वो जो रजिस्टर जो है वो इंटरनल रजिस्टर है या वो इमीडिएट डाटा है या फिर वह मेमोरी लोकेशन से इन्वॉल्व है, ये यहाँ पर रजिस्टर फाइल के द्वारा यहाँ पर पहचाना जाता है. इस वजह से यह रिलेटेड ब्लॉक यहाँ डिकोडर यूनिट के साथ यूटिलाइज होते हैं. देन थर्ड थिंग आती है यहाँ पर एग्जीक्यूशन यूनिट. Execution unit is the third section. This section is used for execution of instruction. यानी जो डिकोडर डिकोड किया हुआ डाटा देता है इमीडिएटली वह एग्जीक्यूशन यूनिट यहाँ एग्जीक्यूशन करने का काम कैरी आउट करता है. यानी अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा है ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन, तो ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन अगर होगी तो ये एग्जीक्यूशन यूनिट एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर एक्शन कैरी आउट करेगा. लेकिन एडिशन ऑपरेशन का एक्शन जब कैरी आउट करेगा तो इट विल डिमांड फर्स्ट वन डाटा एज वेल एज सेकंड वन डाटा. बराबर है. तो जैसे ही फर्स्ट डाटा और सेकंड डाटा वो डिमांड करेगा, उसके साथ साथ वह अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को वहाँ पर इन्वॉल्व करेगा वह ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए. अलॉन्ग विथ वहाँ पर वह पर्टिकुलरली जो डेस्टिनेशन है उस रजिस्टर को भी वहाँ पर इन्वॉल्व करेगा टू स्टोर और लोड द डाटा. तो लोड और स्टोर यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे. अगर डाटा कहीं से आ रहा होगा इमीडिएट से या कहीं पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से, तो अगर मेमोरी लोकेशन से आ रहा होगा तो कैलकुलेट करेगा ब्रांच एड्रेस, या पर्टिकुलरली अगर कोई मेमोरी लोकेशन से आ रहा होगा तो वो लोड होगा, या कहीं एक्सटर्नल यानी इमीडिएट डाटा आ रहा होगा तो वह पर्टिकुलरली इमीडिएट लोकेशन से यानी यूज़र से डाटा आ रहा होगा तो वो यूज़र से डाटा लेगा, या फिर स्टोर करेगा यानी जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसे स्टोर भी करेगा ना. तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे ऑपरेशन कैरी आउट किए जाते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट के द्वारा. तो एग्जीक्यूशन यूनिट इसीलिए ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है. ओके, सो इट विल डू द एग्जीक्यूशन ऑफ एंटायर थिंग. जैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूशन यूनिट यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है तो फिर से इमीडिएटली यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन कैरी आउट होता है, फेच ऑपरेशन. ओके, तो ये साइकिल यहाँ पर कंटिन्यूली यहाँ पर फिर से घूमती रहेगी. फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट. हाँ, एक बात यहाँ पर रह गई, हमने यहाँ पर और कुछ रिलेटेड ब्लॉक जो एग्जीक्यूशन यूनिट के साथ है वह भी यहाँ पर देखने बाकी है. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर एग्जीक्यूशन यूनिट के साथ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा. इट विल कैरी आउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. सिमिलरली द मल्टीप्लायर यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा. इट विल हेल्प यू टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन. एज वेल एज शिफ्टर यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा. इट विल हेल्प यू टू शिफ्ट डाटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू बॉटम, बॉटम टू लेफ्ट और बॉटम टू अप. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में शिफ्ट रजिस्टर के 4 टाइप्स के ऑपरेशन रहते हैं. ओके, तो वह सारे ऑपरेशन यहाँ पर कैरी आउट होंगे. मल्टीप्लायर यूनिट यहाँ पर रहेगा. इट विल डिपेंडेंट ऑन द टोटल बाइट साइज ऑफ द मल्टीप्लायर यूनिट.
एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, इट विल कैरी आउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अलॉन्ग विथ यहाँ पर फ्लैग यूनिट यहाँ पर अवेलेबल होगा, इट विल हेल्प यू टू एनेबल और डिसेबल द फ्लैग्स। ओके, तो ये सारे यूनिट्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर पाइपलाइनिंग के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये सारे वहाँ एक एक करके इन्वॉल्व होंगे, और जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इमिजिएटली वह अदर ऑपरेशन के लिए भी रेडी होंगे। और यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर लिख के दिया है रजिस्टर राइट बैक। ओके, डब्ल्यू बी इज हिडन। ओके, यानी आप अगर कोई यहाँ पर एग्जीक्यूशन यूनिट कैरी आउट कर लिया, तो एग्जीक्यूशन यूनिट होने के बाद अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर्टिकुलरली डाटा आउटपुट में भेजना है, आउटपुट पोर्ट में भेजना है, या मुझे पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, या मुझे पर्टिकुलरली एखादे रजिस्टर में स्टोर करना है, अगर आपने उस तरह की इंस्ट्रक्शन दी होगी तो आपका डाटा either will pass your data will get passed to the output port or memory location or a specified register. Okay, getting my point? तो ऐसे यहाँ पर पर्टिकुलरली पाइपलाइनिंग का वर्क कैरी आउट होता है। ओके, नाउ अभी यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखते हो तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखिए इस तरह की साइकिल इन्वॉल्व होगी। ओके, यहाँ पर आपको मैंने ग्राफ के द्वारा यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ओके, तो ये तो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि फेच का ऑपरेशन क्या होता है, डिकोड का यूज़ क्या होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या यूज़ होता है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक यूनिट एट अ टाइम एक ही बार काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ में शो किया है। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए यहाँ पर दिया है क्योंकि आप यहाँ पर इसका पर्टिकुलरली जो एग्जीक्यूशन ऑपरेशन है ये अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, तो ऑन एक्स एक्सिस देर आर गिवन साइकिल्स एंड ऑन वाई एक्सिस देर आर गिवन टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी हम एट अ टाइम कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या एट अ टाइम हम कितने इंस्ट्रक्शन के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके, रिमेंबर, एट अ टाइम हम एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट टोटल 3 इंस्ट्रक्शन के साथ होता है। याद रखिए, मैं जो सेंटेंस यहाँ पर अभी बताया वह सेंटेंस ध्यान में रखिए। 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, लेकिन एग्जीक्यूट होते समय देखिए एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूशन का काम करेगा। देखिए मैं सेंटेंस को थोड़ा एलेबरेट कर रहा हूँ। देखिए, फेच यानी फेचिंग का काम करेगा, यानी वह क्या करेगा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा और वह डिकोडर यूनिट के पास पास कर देगा। ठीक है, यानी टी पीरियड में यहाँ पर देखिए टी पीरियड यहाँ पर दिया है, तो टी पीरियड में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वह फेच हुई। तो फेच जब हुई तब वहां पर देखिए डिकोडर यूनिट के पास कुछ काम नहीं था, एग्जीक्यूशन यूनिट के पास कुछ काम नहीं था, इसलिए सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताया है। गेटिंग एवरीवन? ओके, यानी जो टी पीरियड में जो नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको पेज के नीचे ब्लैंक दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर सेकंड साइकिल नहीं रहेगी, थर्ड साइकिल भी नहीं रहेगी। गेटिंग एवरीवन? यानी यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 3 साइकिल दी है। पहली साइकिल दी है टी से चालू हो रही है, दूसरी साइकिल दी है T+1 से चालू हो रही है, और तीसरी साइकिल दी है T+2 से स्टार्ट हो रही है। तो अभी देखिए टी में आपको सिर्फ यहाँ पर फेच ऑपरेशन ही दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट ऑपरेशन डिकोड या एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जब फेच ऑपरेशन कैरी आउट करेगा, तब वहां पर डिकोडर और एग्जीक्यूशन यूनिट ब्लैंक रहेगा। देखिए सेकंड साइकिल जब आएगी T+1, तो T+1 में फेच जो अर्लियर जो इंस्ट्रक्शन थी वह डिकोडर को पास की गई, तो डिकोडर यूनिट के पास काम आ गया, डिकोडर यूनिट के पास इंस्ट्रक्शन आ गई, तो इसलिए डिकोडर यूनिट अभी सेकंड साइकिल में इन्वॉल्व हो गया। और यहाँ सेकंड साइकिल में अगर आप देखोगे T+1 में, तो आपको वहाँ 2 ही सेक्शन दिखाई देंगे, पहला है डिकोड और सेकंड है फेच।
थर्ड एग्जीक्यूशन यहाँ पर दिखाई नहीं दिखाई देगा, यानी यहाँ पर ऑपरेशन में आपको सिर्फ फेच और डिकोड ही दिखाई देगा। थर्ड एग्जीक्यूशन अभी इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि डिकोडिंग ऑपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, तब तब जब जैसे ही डिकोडर यूनिट कंप्लीट करेगा तब वहां पर एग्जीक्यूशन यूनिट स्टार्ट होगा, बराबर है ना। सो दैट्स वाई यहाँ फेच और डिकोड यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ इन्वॉल्व हुए हैं। ओके, सो दैट्स वाई फेच और डिकोड इन ऑपरेशन ही यहाँ पर वर्क कैरी आउट कर रहे हैं t+1 में। गेटिंग दिस? सो दैट्स वाई यहाँ आपको सेकंड यानी t+1 साइकिल में आपको फेच ऑपरेशन और डिकोड ऑपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सेकंड यानी t+1 में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फेच की गई, यानी पहली इंस्ट्रक्शन जो फेच की गई थी वो डिकोडर यूनिट ने ले ली, और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वह फेच की जा रही है फेचिंग यूनिट के द्वारा, और जैसे ही फेच यूनिट के द्वारा फेच की जाएगी तो उसे थर्ड साइकिल में उसे डिकोडर यूनिट के पास की जाएगी, बराबर है ना। सो दैट्स वाई अभी t+1 में डिकोडर यूनिट पहली वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहा है, और जैसे ही डिकोडेड स्टेटस मिल जाएगा वह पास कर देगा डिकोडेड स्टेटस एग्जीक्यूशन यूनिट को, यानी t+2 में एग्जीक्यूशन यूनिट भी यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर t+2 में हम रीच होंगे तो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट तीनों यूनिट यहाँ पर एक्शन में आएंगे, और फेच के पास थर्ड इंस्ट्रक्शन रहेगी, डिकोडर के पास सेकंड इंस्ट्रक्शन रहेगी, और एग्जीक्यूशन यूनिट के पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगी। गेटिंग दिस पॉइंट? मेरे सेंटेंस समझ में आ गया सभी को? t+2 साइकिल में t+2 साइकिल में आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में t+2 टाइम पीरियड में आपको फेच यूनिट जो दिखाई दे रहा है वह थर्ड इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है। डिकोडर यूनिट जो है वह सेकंड इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा है, और एग्जीक्यूशन यूनिट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। इस तरह t+2 टाइम पीरियड में हमें वहां टोटल कितने इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हुए हैं? टोटल 3 इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन यूनिट कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा एट अ टाइम? ओनली 1। डिकोडर यूनिट कितने इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा? ओनली 1। फेच यूनिट कितने इंस्ट्रक्शन फेच करेगा? ओनली 1। यानी तीनों मिला के कितने इंस्ट्रक्शन आ गए अभी? 3 इंस्ट्रक्शन। यानी हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम स्पीड अप हुआ कि नहीं? यानी आपको यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ जो वेटिंग पीरियड था वह वेटिंग पीरियड यहाँ पर फेच के बाद डिकोड, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट, ये वेटिंग पीरियड यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी जैसे ही आप t+3 साइकिल में जाओगे तो वहां पर एग्जीक्यूशन यूनिट को वेट नहीं करना पड़ेगा, डिकोडर यूनिट को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अहेड ऑफ द टाइम डिकोडेड डाटा एग्जीक्यूशन यूनिट के पास रहेगा, डिकोडर यूनिट के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल रहेगी। यानी t+3 टाइम पीरियड में वहां पर टाइम्स आने से पहले ही वहां पर उनके पास वर्क कैरी आउट हो जाएगा, वर्क अवेलेबल होगा, और वह t+3 टाइम पीरियड में वह नेक्स्ट ऑपरेशन इमीडिएटली परफॉर्म कर सकेंगे। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट के द्वारा थ्रूपुट ऑफ द प्रोसेसर इंक्रीज होता है, याद रखिए। इसी वजह से प्रोसेसर में, कंट्रोलर में थ्रूपुट ऑफ द प्रोसेसर इंक्रीज होता है, यानी इस वजह से MIPS रेट कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इसी वजह से यहाँ पर MIPS रेट कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नो अभी नेक्स्ट यहाँ पर आपको और डिटेल में जानकारी दे रहा हूं। कैसा है, अभी तक आपने यहाँ पर लास्ट स्लाइड में देखा 3 स्टेज पाइपलाइनिंग, लेकिन हम यहाँ पर अभी आगे जा रहे हैं यहाँ पर 5 स्टेज पाइपलाइनिंग के लिए। ओके, तो 5 स्टेज पाइपलाइनिंग की यहाँ पर आपको यहाँ ये स्लाइड शो कर रहा हूँ। सी यहाँ इस स्लाइड में आपको यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ मैं। ओके, जो पाइपलाइनिंग के बेनिफिट्स हैं। ओके, तो यहाँ बेनिफिट्स ऐसे रहेंगे, इट रिड्यूसेस वर्क पर साइकिल। जो बेनिफिट्स है पाइपलाइनिंग के, इट विल रिड्यूसेस द वर्क पर साइकिल, इट अलाउ हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी।
Okay, it separates data and instructions. Okay, similarly memory. Okay, reduction of CPI. ओके तो यानी क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। ओके तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। और यहाँ पर दूसरी बात बता रहा हूँ, यहाँ आपको यह स्लाइड शो कर रही है 5 स्टेज पाइपलाइनिंग। तो यहाँ पर 5 स्टेज कौन कौन से आए, तो आपको यहाँ पर अभी तो ये पता था कि भाई फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट ये 3 स्टेजेस रहते हैं 3 स्टेजेस में। ओके लेकिन इसके अलावा 2 और स्टेजेस यहाँ पर जुड़ गई हैं इस स्लाइड में, वह है बफर और डाटा, और नेक्स्ट स्टेज है राइट बैक। ओके ये 2 स्टेज यहाँ पर बढ़ गई, तो ये 2 स्टेजेस एडिशनल बढ़ गई यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ कहा गया है 5 स्टेज पाइपलाइनिंग। ओके तो यहाँ 5 स्टेज पाइपलाइनिंग में यहाँ पर 3 स्टेज जैसे मैंने आपको बताया वो वैसे ही वर्क कर रहे हैं जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया। यानी आपको यहाँ ऐसा नहीं रहेगा कि भाई कोई नया एक्सप्लेनेशन आएगा कि यहाँ 3 स्टेज की जगह 5 स्टेज में कोई अदर वर्क कैरी आउट करेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर फेच फेच का काम करेगा, डिकोड डिकोड का काम करेगा, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन का काम करेगा। 3 स्टेजेस में जो ड्रॉबैक्स था वह ड्रॉबैक्स यहाँ पर और यहाँ रिप्लेस किया गया है। कैसा, 3 स्टेजेस में जब एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट कर लेता था तो क्वेश्चन आता था कि भाई वहाँ हमारा जो एग्जीक्यूटेड जो ऑपरेशन है, जो एग्जीक्यूटेड डाटा है, जो रिजल्ट है, वो स्टोर कहाँ किया जाए। तो वो स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये 2 और एडिशनल स्टेजेस बनाई गई है। यानी इसके वजह से मेमोरी और जो राइट ऑपरेशन यानी रजिस्टर राइट ऑपरेशन है वह एड ऑन यहाँ पर कैरी आउट किया गया है। नहीं तो वो कैसा, वो बर्डन वहां पर एग्जीक्यूशन यूनिट में पड़ता था, तो वो बर्डन वहाँ 3 स्टेजेस के द्वारा वह रिप्लेस किया गया है 5 स्टेजेस के ऊपर। ओके तो 3 स्टेजेस में जो एग्जीक्यूशन यूनिट मैंने वहां तब बताया कि भाई एग्जीक्यूशन विल यूनिट विल टेक केयर अबाउट द स्टोरेज ऑफ डाटा इन द, यानी यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन यूनिट है वो एग्जीक्यूशन यूनिट यहाँ पर वो स्टोर करेगा स्टोरेज का डाटा, यानी वह अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को भी यहाँ पर हैंडल करेगा, कैलकुलेट करेगा ब्रांच एड्रेस, और लोड और स्टोर का ऑपरेशन भी यहाँ पर कैरी आउट करेगा। ओके तो इतने सारे यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर इन्वॉल्व होते थे, तो इस वजह से एग्जीक्यूशन यूनिट विल गेट बर्डन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द थ्रूपुट, इफ इन केस अगर आप थ्रूपुट की बात करोगे तो थ्रूपुट थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वह इम्प्रूवमेंट यहाँ पर इस 5 स्टेज पाइपलाइनिंग के द्वारा आपको दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी द एड-ऑन बेनिफिट ऑफ दिस 5 स्टेज पाइपलाइनिंग। ओके तो इस वजह से यहाँ पर 4th स्टेज जो है उसको मेमोरी भी कहा गया है, यानी मेमोरी एक्सेस यहाँ पर आपको इजियर हो गया। जहाँ मेमोरी कभी कभी कैसा है कि मेमोरी को कम्युनिकेट करने के लिए, कैसा मेमोरी अगर इंटरनल रहा तो बात इजी हो जाती है। बहुत सारे बार प्रोसेसर में मेमोरी एक्सटर्नल रहती है या कंट्रोलर में भी मेमोरी एक्सटर्नल रहती है। दैट्स व्हाई द एक्सटर्नल मेमोरी लिंकिंग टाइम विल बी लार्जर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्टोरेज ऑफ डाटा will take some finite amount of the time. That's why this problem is avoided or eliminated with the help of this memory access. This memory access unit will take care about that storage of the data into the memory. सिमिलरली बहुत सारे टाइम मल्टीपल रजिस्टर्स माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दे आर प्लेस इन द डिफरेंट बैंक्स। So enabling of that blank or disabling of that blank will be taken care by the programmer, and in that situation the storage of data in that particular specified register will be takes time. So that's why that time will be eliminated with the help of write operation. So that's why write back will be the stage. In that stage the register writing operation is carried out. So that's why this is the biggest benefit of this 5 stage pipelining. Okay so this is about the 5 stage pipelining. Okay I hope you got the idea about this 5 stage pipelining. Okay now lastly, in this pipeline organization I would like to add some points. Okay these points are
pipeline flush and refilled on branch, it causes executions to slow down. Okay. And second is special features in instruction set eliminate small jumps in code to obtain the best flow through pipelining. I am telling you the meaning. Now, अभी मैंने ये तो कह दिया कि भाई पाइपलाइन इज बेनिफिशियल. ओके. Because of the pipelining we can speed up the execution of the program. Okay. So ahead of the time the instruction are available, are get fetched by the fetch unit, are get decoded by the decoder unit and executed by the execution unit. This is the biggest advantages of the pipelining. Okay. Obviously, uh, pipelining is used for speed up the execution process. But in case whenever you are going to execute a program और आपके प्रोग्राम में 4 या 5 इंस्ट्रक्शन जाने के बाद अगर कोई जंप इंस्ट्रक्शन अगर आती है, तो जंप इंस्ट्रक्शन जब आएगी यानी ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अगर आती है, तो ऐसे सिचुएशन में पाइपलाइनिंग आपको बेनिफिटेड रहेगी या नहीं, ये यहाँ पर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेंटेंस के द्वारा फाइंड आउट किया गया है. गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन 2 सेंटेंसेस के द्वारा, वो पॉइंट आपके सामने यहाँ पर लाया मैंने. यानी अगर आपके प्रोग्राम में अगर जंप नाम की या जे जेड या जे सी इस नाम की अगर इंस्ट्रक्शन अगर इंट्रोड्यूस हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपका जो पाइपलाइनिंग है वो आपको बेनिफिटेड रहेगा या नहीं. रिमेंबर, ऐसे सिचुएशन में आपको वह पाइपलाइनिंग में वह कौन से ये जो पाइपलाइनिंग जो आपको स्पीड अप कर रही थी, जो एग्जीक्यूशन में आपको जो स्पीड अप कर रही थी, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बेनिफिटेड नहीं रहेगा. रीजन, बिकॉज ऑफ अगर आप ब्रांच कंट्रोल अगर इंस्ट्रक्शन वहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो देखिए प्रोग्राम काउंटर का क्या काम रहता है. प्रोग्राम काउंटर का काम रहता है टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ऑब्वियसली, तो वो क्या करेगा, जंप इंस्ट्रक्शन भी फेच करेगा, जंप के आगे वाली भी इंस्ट्रक्शन फेच करेगा. बराबर है. जंप के आगे वाली भी फेच करेगा यानी वो डिकोड भी हो जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर वो डिकोडर यूनिट डिकोड भी कर लेगा, फेच यूनिट फेच भी कर लेगा, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर डिकोडर और फेच के पास वो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी. और उसके वजह से जब एग्जीक्यूशन यूनिट ये अंडरस्टैंड करेगी कि अरे बाबा, मुझे पर्टिकुलरली जंप ऑपरेशन कैरी आउट करना है. जंप ऑपरेशन कब समझेगा, जब एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट करेगा, तभी वो डायरेक्शन देगी ना प्रोग्राम कंट्रोलर को, प्रोग्राम काउंटर को या पर्टिकुलर एड्रेस रजिस्टर को टू जंप ओवर द स्पेसिफाइड एड्रेस. जब एग्जीक्यूशन यूनिट होगा, तो एग्जीक्यूशन यूनिट जैसे ही एग्जीक्यूट करेगी इंस्ट्रक्शन, तब वो डायग्नोसिस करेगी कि उसे पर्टिकुलर वो एड्रेस के ऊपर जाना है, और वो पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर अगर जाना होगा, तो डिकोडेड जो इंस्ट्रक्शन है या जो फेच इंस्ट्रक्शन है वो काम की नहीं रही, आपको वहां पर उसका यूज नहीं रहा. तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो पाइपलाइन फ्लश करनी पड़ेगी और आपको रिफिल करना पड़ेगा जैसे ही आपको ब्रांचिंग ऑपरेशन कैरी आउट करना पड़ेगा. So this is the meaning of this sentence. Means pipelining will get flushed and refilled on branch operation. Getting the point? And it causes execution to slow down. यानी उसके वजह से क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत स्लो होगी. डोंट बॉदर अबाउट इट. यानी इसके द्वारा ये ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन आपको और इससे बचने के लिए ऑप्शंस है ना. इसी वजह से तो एडवांस कंट्रोलर आ गए, इसी वजह से तो इंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हुई है. ओके. इसी वजह से यहाँ पर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट भी लाया गया है, और वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होने के बाद डिजाइनर ने वहां पर इंस्ट्रक्शन में आपको मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट किया है. इसी वजह से आपको ये ड्रॉबैक भी समझाना जरूरी है, और ड्रॉबैक के साथ साथ जो नए एडवांटेजेस उसमें एड ऑन हुए हैं ये भी समझाना जरूरी है. So that's why some special features in instruction set eliminate
स्मॉल जंप्स इन कोड। यानी इस वजह से क्या हुआ, ये ड्रॉबैक की वजह से डिजाइनर ने फिर इंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन किया। इस वजह से सम एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग इन द मार्केट, कमिंग इन द इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, इस वजह से इंस्ट्रक्शन सेट थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो गया, और वह मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइनर ने प्रेफर करना चालू कर दिया उनके प्रोग्रामिंग में। और इसी वजह से some special feature in instruction set will eliminate the small jumps in code to obtain the best flow through pipeline. So that's why this is the biggest advantage and concept against the pipeline organization. Getting everyone? I hope everyone will got idea about this pipelining concept. Okay, so this is about the pipeline organization in the आर्म्स फैमिली। तो आप जब भी पाइपलाइन का ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर काम आएगा। सो I hope this video will be benefited for you. So try to like my channel. Thank you very much. And also you are you are instructed to give your attendance through comment box. Okay, write your roll number and name. Okay. So thank you very much. Okay.